हम पहले पढ़ चुके थे कि पॉलीमर्स क्या हैं। पॉलीमर्स आर बिलोंगिंग टू द लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स। मैक्रोकेमिस्ट्री के साथ हम उसकी डीलिंग कर रहे थे। सो देवर लाइक देयर वर macromolecules in nature. Now, then we started the nanosciences. These are the mm, smallest molecules in nature. So, this is the discipline which is concerning with materials having the size in the range of 1 to 100 nanometer. So, these materials are called nano materials, and science which is dealing with this, that is called nanoscience. So nanotechnology is based upon this nanosciences, and you are producing new machines, products based upon these nanomaterials. Nanochemistry, हम कह रहे थे कि we are building different types of the molecules which are based upon their shapes, sizes, composition, surface structure, charge, functionality. इसके बारे में हम पढ़ चुके थे. Hierarchical assembly, then these nano materials, they are producing a big macromolecular structure like biological structure. This is called hierarchical assembly. Uh, then we talked about the types of the nanomaterials. There are nanocrystals, nanotubes, nanowires, nanocomposites. Nanocrystals, these are the nanomaterials having dimension from 1 to 50 nanometers, and they have intermediate properties. They are applied as biochemical tags, as laser and optical components for the preparation of display devices, for chemical catalysis. Different types के उसके लिए हम use कर सकते हैं. नैनो ट्यूब्स, ये नैनो क्रिस्टल्स जो हैं आजकल आप लोग ये आपको देखने में आया होगा कुछ वीडियोस जिसमें ये कोविड का जो वैक्सीन लगा देते हैं तो वो कहते हैं कि फिर उस जगह को मैग्नेट आप उससे चिपक सकता है. सो दे आर एक्चुअली कंटेनिंग नैनो क्रिस्टल्स एज वेल. Nanocrystals of iron oxide, they are highly supermagnetic in nature. लेकिन उनका फंक्शन कुछ और होता है. They are actually delivering the genes and the RNA or DNA to the targeted sites. लेकिन लोग उसको कुछ और समझ रहे हैं. So nanomaterials, they are even used in the vaccines as well. ठीक है. Nanocrystals आजकल यूज किए जा रहे हैं उसमें. Nanotubes, these are hollow carbon nanotubes of nanometer sizes. They constitute new form of the carbon. मतलब nanotubes जो carbon nanotubes जो हम कहते हैं. Allotropic जो फॉर्म्स है वो आपके पास डायमंड है और ग्रेफाइट है, और इसके अलावा हम उसको कहते हैं बकी बॉल्स. और ये नैनोट्यूब्स भी हमारे पास एक किस्म का, हम इसको इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं. May be synthesized with sizes ranging from a few microns to a few nanometers, and with thickness of many carbon layers down to single walled structures. यूनिक स्ट्रक्चर, इसको आप सिंथेसाइज कर सकते हैं जिस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ द कार्बन आपको मिलते हैं, तो इसी तरीके से हम नैनो ट्यूब्स को भी सिंथेसाइज करते हैं. The unique structure of these nanotubes give them advantageous behavior relative to properties such as electrical and thermal conductivity, strength, and stiffness and toughness. इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल कंडक्टिविटी, स्ट्रेंथ और टफनेस जो है बाकी इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म से ज़्यादा है. Nanowires, these are types of the wires which are having rod shapes. They are solid, dense structure much like a conventional wire.
जिस तरह आपको एक वायर मिलता है उसी तरीके से ये वायर्स की शक्ल में होता है, लेकिन ये नैनो साइजेस में होता है। ऑफर द पोटेंशियल फॉर क्रिएटिंग वेरी स्मॉल आईसी कंपोनेंट्स। ये जो आप लोग उसको यूज़ कर रहे हैं मोबाइल्स में, डिफरेंट डिवाइसेस में, आईसी सर्किट्स में जो लगे होते हैं कंपोनेंट होता है, तो ये नैनो वायर्स उसके लिए यूज़ करते हैं। और उसी की वजह से अगर आप उस ये डिफरेंट डिवाइसेस की उसको देखते हैं कि इनकी फंक्शनैलिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन साइजेस और भी डिक्रीज होते जा रहे हैं। मतलब तेज हैं और साइजेस में छोटे हैं। सो दिस इज एक्चुअली बिलोंगिंग टू नैनो वायर्स। जो सर्किट मटेरियल में ये हम यूज़ कर रहे हैं ना, कंप्यूटर चिप्स में या मोबाइल चिप्स में या किसी और इस तरह का सर्किट हो जो इम्पोर्टेंट होता है, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एंड दे आर एक्चुअली वेरी सुपर कंडक्टिंग इन नेचर। ठीक है, बहुत अच्छे होते हैं ये। तभी आप देख रहे हैं कि सुपर मैग्नेटिक मटीरियल्स आप को इंजेक्ट किए जाते हैं, लेकिन उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दैट इज आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड पहले से हमारे जिस्म में मौजूद होता है, बट दैट इज नैनो साइजेस। वो उधर पहुंच के जहाँ पे डिलीवरी ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड है उधर पहुंचा देते हैं। तो ये चीज़ें नैनो वायर्स इसी तरीके से ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड इन आईसी कंपोनेंट्स। नैनो कंपोजिट्स, नैनो कंपोजिट्स दे आर, कॉल अटेंड करता हूँ, ठीक है। Nanocomposites, they encompass a large variety of systems composed of dissimilar components that are mixed at the nanometer scale. इसमें नैनो कंपोजिट्स में हम क्या करते हैं, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल को आपस में कंबाइन करते हैं जिनकी साइजेस जो है नैनोमीटर स्केल में होते हैं। This can be 1, 2 or 3 dimensional organic or inorganic, crystalline or amorphous in nature. ये जो नैनो कंपोजिट्स होते हैं ये एक से ज़्यादा भी मटेरियल से हम बना सकते हैं। और फिर इन मटेरियल की आपस की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी डिफरेंट हो सकती है। मतलब ये 1 डायमेंशनल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। नैनो कंपोजिट्स आजकल बहुत बड़ी रिसर्च है और लोग इसको करते हैं। Behavior is dependent on not only the properties of the components but also morphology and interaction between the individual components, which can give rise to novel properties not exhibited by the parent materials. ये जो है आप नैनो कंपोजिट्स, जाहिर सी बात है, आप एक दो तीन चीज़ों को आपस में मिला देते हैं तो उनका बिहेवियर जो आपको नया मिलता है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट मटेरियल्स। ठीक है, वो डिफरेंट तरीके से आपको बिहेव करके मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को या तो इन्हेंस कर देते हैं या वो उसको डिक्रीज कर देते हैं। किसी एक प्रॉपर्टी को या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को भी इस तरह करते हैं। ज़्यादातर नैनो कंपोजिट्स ये लाइट एमिटिंग डायोड्स में यूज़ होते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड्स या लाइट टेक्नोलॉजी जितनी भी है उसमें हम यूज़ करते हैं, लाइक वाइट लाइट एमिशन या ग्रीन लाइट एमिशन या रेड लाइट एमिशन जो स्क्रीन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, स्क्रीन्स में ये जो डिफरेंट टाइप्स के स्क्रीन्स हैं, एलईडीज़, ओएलईडीज़, पता नहीं को कितने कितने स्क्रीन्स आ रहे हैं। तो ये चीज़ है जो है ये नैनो कंपोजिट्स एक तरफ उधर, दूसरी तरफ अगर आप उसको ले लें कैटालिटिक साइड पे भी हम इसको यूज़ करते हैं कि इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो बढ़ जाती है व्हेन यू कंबाइन देम टुगेदर to produce a new type of the material. Size reduction from microcomposite to nanocomposite yields an increase in surface area that is important in applications. असल में अगर हम नैनो मटेरियल्स में क्यों इंटरेस्टेड होते हैं, एक्चुअली नैनो मटेरियल्स जो हैं इनकी सरफेस एरिया ज़्यादा होती है, साइज़ कम होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होती है।
तो इस तरीके से नैनो कंपोजिट्स के भी जब हम उसमें क्या करते हैं, इसको इसकी साइजेस हम कम करते हैं, सो वी आर गेटिंग इंक्रीज सरफेस एरिया, और इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो बढ़ जाती हैं, लाइक मैकेनिकल रेनफोर्समेंट, नॉन लीनियर ऑप्टिक्स में फिर आप इनको यूज़ भी कर सकते हैं, इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ या इनके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ या कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज हो जाती है subsequently. That is why you can use them for mechanical reinforced components, non-linear optics, batteries, sensors and catalysts. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस के लिए हम फिर इनको यूज़ कर सकते हैं. Methods of preparation. Now, the preparation of the nano materials, you can prepare them by different techniques, by synthesis strategy, by nature of process, by medium of synthesis. ठीक है, three types of है. By synthesis strategy, bottom up strategy, by the agglomeration of atoms or particles. असल में जहाँ से ये बन रहे हैं ना, मतलब जो आपका नैनो मटेरियल है या नैनो क्रिस्टल है, जो भी बन रहा है, वो जिस जगह से बन रहा है तो उधर जो एटम्स और पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो वो नैनो साइज के मटेरियल्स को बर्थ देते हैं. ठीक है, मतलब आजकल भी हम अब डिफरेंट टाइप्स की सिंथेसिस करते हैं, तो उसमें भी नैनो मटेरियल्स बनते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा था. सो बॉटम अप स्ट्रेटजी इसको ये कहता है कि फ्रॉम वेयर यू आर स्टार्टिंग योर सिंथेटिक मेथड्स, you can also uh, produce the nano uh, materials from that synthesis as well. Top down strategy, attrition, by breaking the larger particles to the nano sizes. या तो ये है कि हम इस तरह कर सकते हैं कि बड़ा मटेरियल है उसको हम तोड़ के उसको इतना तोड़ देते हैं कि वो आखिर में नैनो साइज पे पहुंच जाता है. जनरली डन बाय हाई एनर्जी बॉल मिलिंग. ठीक है, इसको हम, जाहिर सी बात है, जब तोड़ने का काम आता है तो मॉलिक्यूल्स को तो ज़्यादातर एनर्जी से तोड़ा जाता है. सो यू कैन डू इट बाय द बॉल मिलिंग मेथड. ये अभी आ रहा है सब कुछ, ये हम बात करेंगे. ठीक है, बाय नेचर ऑफ प्रोसेसेस, फिजिकल मेथड्स, इसमें भी दो हैं. अब फिजिकल मेथड में ये होता है कि उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता, और केमिकल मेथड में केमिकल चेंज आता है. ये तो पहली सी अल्टीमेट बात है. सो फिजिकल मेथड्स में ओनली द साइज ऑफ द पार्टिकल्स कैन बी रिड्यूस्ड मैकेनिकली. ठीक है, नाउ फिजिकल मेथड मैकेनिकल भी हो सकता है. यू कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फोर्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी चेंज्ड. और जाहिर सी बात है, जब फिजिकल मेथड से कर रहे हो तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो नहीं चेंज होगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी. No change in chemical properties, just the increase in chemical reactivity due to the uh, increase in surface area. ठीक है. अच्छा, दूसरा जो है केमिकल मेथड से, केमिकल प्रॉपर्टीज गेट चेंज अकॉर्डिंग टू द केमिकल रूट. और केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल मेथड से हम क्या करते हैं कि इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस को फॉलो करते हैं. ठीक है, बाय मीडियम ऑफ सिंथेसिस. अब बाय मीडियम ऑफ सिंथेसिस से क्या मतलब है, या तो ये गैस फेज सिंथेसिस है, या लिक्विड फेज सिंथेसिस है, या सॉलिड फेज सिंथेसिस. ना, गैस फेज सिंथेसिस क्या होता है, नैनो पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन among gas molecule condensation or decomposition. This usually leads to the nanoparticles production. इसमें हम क्या करते हैं, गैस फेज सिंथेसिस में जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं उनको हम गैस में कन्वर्ट करते हैं. उनकी शेप, वो जो क्या कहते हैं, मटेरियल की जो रिएक्टिंग वाली फिजिकल स्टेट है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है. सो व्हेन द रिएक्शंस आर इन गैस फेज, this will ultimately this will ultimately produce the nanomaterials. Liquid phase synthesis.
लिक्विड फेज सिंथेसिस में प्रेसिपिटेशन इन होमोजीनियस मीडियम, लाइक हम क्या करते हैं कि इसमें दो लिक्विड्स को आपस में मिलाते हैं और उस दो लिक्विड्स के आपस के मिलने के बाद आपके पास जो नैनो मटेरियल होता है वो नीचे बैठ जाता है एज अ प्रेसिपिटेट। लिक्विड फेज सिंथेसिस जो है ये कम डिफरेंट टाइप्स के मेथड से किया जाता है। इसमें द फर्स्ट रूट इज केमिकल प्रेसिपिटेशन, द सेकंड मेथड इज हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस, thermal hydrolysis, and the third one is sol gel synthesis, and the fourth one is microemulsion synthesis or synthesis in reverse micelles। चार मेथड्स लिक्विड फेज सिंथेसिस में यूज होते हैं, या तो केमिकल प्रेसिपिटेशन होगा, या हाइड्रोथर्मल होगा जिसमें थर्मल हाइड्रोलिसिस हम यूज करते हैं, या सॉल्ट जेल सिंथेसिस होगा, या माइक्रो एमल्शन सिंथेसिस, या रिवर्स माइसेल मेथड जिसको आप कहते हैं। तो इन चार मेथड्स में से कोई एक मेथड को फॉलो करेगा। नाउ केमिकल प्रेसिपिटेशन। अब लिक्विड फेज सिंथेसिस का जो पहला मेथड है वो केमिकल प्रेसिपिटेशन है। सो chemical precipitation में fast chemical reaction is required to obtain a high degree of supersaturation of the product to favor homogeneous nucleation। ये देखें, इन्होंने मतलब डायग्रामेटिकली आप शो किया है कि reactant A reactant B, when these two are reacted together to produce supersaturated solution, so after mixing them you can get nucleation। nucleation का मतलब ये होता है कि you are producing a seed of the nano materials। ठीक है, एक सीड जब आपके पास प्रोड्यूस हो जाता है, so this will lead to crystal growth and then nanoparticles will be produced। न्यूक्लिएशन का मतलब यही होता है कि आप एक सीड प्रोड्यूस कर देते हैं। अब ये सीड प्रोडक्शन जो है ये भी डिफरेंट तरीक़ों से होता है, या तो आप एक्सटर्नल क्रिस्टल डालने से, कि मतलब एक कोई शीशा ऐसा कोई मटेरियल डाल दे जिसका कोई शेप होता है, तो आप उसको डाल दें तो इसके बाद न्यूक्लिएशन आसानी से हो जाती है, वो उसी को फॉलो करके उस पैटर्न को फॉलो करके आपको क्रिस्टल दे देते हैं। या हम उसके लिए थोड़ा सा सब्र कर देते हैं, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन होता है तो उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं फॉर इन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, या हम कूलिंग उस टेम्परेचर पे इसको रख देते हैं, तो फिर उसके बाद क्रिस्टल ग्रोथ हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड केमिकल प्रेसिपिटेशन, जिसमें दो रिएक्टेंट्स के आपस के मिलने के बाद न्यूक्लिएशन से क्रिस्टल ग्रोथ हो जाती है एंड दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस क्या होता है? सो दिस इज थर्मल हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस। Aqueous solution of metal salts or gels are treated at elevated temperatures and pressure above 1 atm। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस में हम क्या कहते हैं, मेटल साल्ट या उनके जेल्स उनको लेते हैं, लेकिन इसमें टेम्परेचर भी हाई होता है और प्रेशर भी हाई होता है। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव होता है। दिस इज जस्ट लाइक अ कुकर सिंथेसिस। ठीक है, जिस तरह कुकर प्रेशर कुकर का आपका वो होता है, तो उसी तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट होता है इसका भी। सो इट इज एक्चुअली यूजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर of the system। Size and shape of nanoparticles can be controlled by changing the condition of the solutions। अब इसमें जो आप अपने नैनो पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। नंबर वन, इसमें पीएच, कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट एंड प्रोसेस कंडीशन, टेम्परेचर, ड्यूरेशन एटसेट्रा। ये जो है ये तीन चीज़ें आप उसको ले लेते हैं तो यू कैन प्रोड्यूस डिफरेंट साइज एंड शेप्स ऑफ द नैनो पार्टिकल्स। पीएच को चेंज करते जाते हैं, या तो वो एसिडिक होता है या न्यूट्रल होता है, बेसिक होता है, या ज़्यादा बेसिक होता है या ज़्यादा एसिडिक होता है, वो उसी पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो उनकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, जाहिर सी बात है। और थर्ड थिंग जो है टेम्परेचर और उसका ड्यूरेशन, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। जितना आप ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए देते हैं, जितना कम ड्यूरेशन के लिए देते हैं, इसमें एक ऑप्टिमल ड्यूरेशन हम मालूम करता है पहले कि किस ड्यूरेशन पे
अच्छे नैनो मटेरियल्स बनते हैं। तो उसको मालूम करके फिर हम ये कर देते हैं कि हाँ जी, ये टेम्परेचर है और ये ड्यूरेशन है। तो उसके बाद हमारे पास अच्छे नैनो मटेरियल्स बनते हैं। अब तीसरा जो लिक्विड मेथड्स हैं, उसमें जो तीसरा मेथड है दैट इज सॉल्ट जेल सिंथेसिस। सॉल्ट जेल सिंथेसिस में क्या होता है? This process involves the alkoxide hydrolysis and a condensation reaction. Like you are having alcohol or alkoxides of the alkoxide or alcohol derivatives of the metal. When they are reacted with water, so you are producing different types of these type of the materials like metal alkoxide X plus YH2O, H2O ये। So this will produce MORX minus Y, मतलब जितने Y के मॉलिक्यूल आएंगे तो इतने X के मॉलिक्यूल निकलेंगे इससे। So you are getting OHY, YROH इससे निकल गए। Partially hydrolyzed species are then linked to form MOM bond. Now these are hydrolyzed species. When they are reacted together, this will produce the मेटल ऑक्साइड डिराइवेटिव। लेकिन ये अब देख रहे हैं कि दो मेटल आपस में लिंक हो गए। दिस बॉन्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय कंडेंसेशन बाय डिहाइड्रेशन और डी अल्कोहलेशन। ठीक है, किसी एक मेथड से हम इसको दे बना देते हैं ये बॉन्ड। So the process involving hydrolysis, polymerization, nucleation, and condensation and growth condenses the molecular units together into small clusters called sols, eventually leading to the formation of an insoluble three-dimensional network, the gel. पहले आप ये छोटा सा यूनिट इसमें बना देते हैं। ये छोटा सा यूनिट जब बन जाता है इसको हम सोल कहते हैं। ये अब इसमें क्या होता है, ये छोटा सा यूनिट इसमें हाइड्रोलिसिस भी हो गया है, पॉलीमराइजेशन भी हो गया है, एंड देन न्यूक्लिएशन और ग्रोथ भी हो गई है। So when this sol is produced, this sol then leads to insoluble material that is called gel. So this method is actually, this is sol gel synthesis. When you are producing sol and then the gels, they are the three-dimensional network of the sols. So when you produce the three-dimensional network in nanos size, so this method is called sol gel synthesis। ठीक है। माइक्रो emulsion synthesis और synthesis in reverse micelles। अब ये चौथा मेथड है लिक्विड सिंथेसिस में। माइक्रो emulsion thermodynamically stable optically clear dispersions of two immiscible liquids such as water and oil. Uh, they are formed when a surfactant lowers the oil-water interfacial tension, allowing thermal motions to spontaneously disperse the two immiscible phases। इसमें क्या होता है, हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में मिलाते हैं। ठीक है, अब इमिसिबल लिक्विड्स कौन कौन से हैं? लाइक फॉर एग्जांपल वन इज वाटर एंड अदर वन इज ऑयल। ठीक है, so oil and water when they are mixed together, अब इन दोनों में surfactants, when the surfactant lowers the oil water interfacial tension, allowing thermal motion to spontaneously disperse the two immiscible phases। इसमें हम सर्फेक्टेंट डाल लेते हैं। ठीक है, तो सर्फेक्टेंट से क्या होता है, ये दोनों जो मीडिया है, मतलब ऑयल और वाटर, इन दोनों के दरमियान एक बैरियर है। तो वो सर्फेक्टेंट उसको ख़त्म करने में लग जाता है। ठीक है, तो जब वो ख़त्म करता है तो उसके ख़त्म होने से ये दोनों सरफेसेस जो हैं, इन दोनों के दरमियान जो मालिकुलर एक्सचेंज है वो शुरू हो जाता है। रिवर्स माइसेल सर ये सरफेक्टेंट क्या होता है? लाइक डिटर्जेंट्स, ये सरफेक्टेंट है। ठीक है, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, सॉरी डिक्रीज करता है। ठीक है, सो
रिवर्स माइसेल्स, ये तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं उसमें, बाय नेचर सर्फेक्टेंट्स है। Reverse micelles are molecular self-assemblies from surfactants which have a spherical shape with a hydrophilic cover and a hydrophobic tail on the surface, on the sphere surface. अब इसमें सर्फेक्टेंट्स की जगह आप रिवर्स माइसेल्स भी यूज कर सकते हैं। रिवर्स माइसेल में क्या होता है, इसमें दो साइड्स होते हैं। इसका एक सर जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वो वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है। दूसरा जो है वाटर सॉल्युबल है, और दूसरा जो है इसका टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये दोनों के साथ एक तरीके से मतलब कनेक्शन में होता है। Most popular method to prepare nano-sized inorganic particles as oxides. इससे हम ज़्यादातर नैनो ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इस मेथड से। अब ये टाइम ख़त्म होने वाला है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है सो यू मे आस्क। टाइम इसका ख़त्म हो गया, लेस देन 1 मिनट रह गया। सर प्लीज द वीडियो भी हम सर शेयर करें सर, और नोट्स हम सर पहले में इसके अपलोड को मेहरबानी।